बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखते हैं कि व्हाट आर एल्कीन्स या एल्कीन जो हैं वो हम किसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इनमें डिफरेंस देखने हैं। सो व्हाट आर एल्कीन्स? एल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons means the compounds which contain carbon and hydrogen as their basic elements. So alkenes are the hydrocarbons in which there is a double bond between carbon and carbon. Last lectures में आप इथेन पढ़ चुके हैं. In case of ethane there are two carbon atom and there is a single bond between two carbon. But in case of alkene, from ethane to ethene, there will be a double bond between carbon and carbon. Similarly, in case of propane, we say there is a single bond between three carbon atom. ये हमारे पास प्रोपेन है. तो प्रोपेन से अगर हमने प्रोपीन बनानी है तो I will insert a double bond. I can insert one double bond or two double bond. So alkene की जो पहचान है, that is always there is a double bond between carbon and carbon atom. Similarly, 4 carbon वाले को हम कहते हैं it is a butane. It means that there is a single bond between carbon and carbon. I am not writing here hydrogen atom. You know, how can we satisfy the valency of carbon? Carbon is tetravalent. It means 3 bonds it forms with hydrogen, one with this carbon. This carbon is forming 2 bonds with these 2 carbons, and third and fourth bond with these 2 hydrogen. Similarly, its valency you can satisfy in this way. This carbon is forming 1 bond here and 3 bonds with hydrogen atom. So it is the structure formula for butane. अब ब्यूटेन से मैंने इसको ब्यूटीन बनानी है. ब्यूटेन, from butane I want to change it into butene. B-U-T-E-N-E. It means in case of alkene, the name of hydrocarbon ends at E-N-E. Okay, so butene 1, 2, 3 and 4. कहीं भी डबल बॉन्ड कर दें, सपोज here. So it is butene. And what is an alkyne? Alkyne means, या यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, it is actually alkene. So what is alkyne? In case of alkyne, there is always a triple bond between carbon and carbon. अगर मैंने इथीन से इथाइन बनाना है, between 2 carbon atom there will be a triple bond. So the name of this alkyne is ethyne. Similarly, carbon, carbon, carbon and carbon. If I put a triple bond, what will be the name of this hydrocarbon? 4 carbons and there is a triple bond, so it will be butane. तो ये याद रखिए, ब्यूट means that it is a hydrocarbon which consists of 4 carbon atom, and Y and E stands for the presence of triple bond.
तो एल्कीन में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, एंड इन केस ऑफ एल्काइन देयर इज ऑलवेज अ ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे फार्मूलाज भी आएंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सेम फार्मूला। तो वो हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो देख लेते हैं कि कहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे। ओके जी, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 and 5. I'm not writing hydrogens, उससे ज़रा confusion हो जाती है, इससे neatness नहीं आती। Here I am putting a double bond and a triple bond here. तो जो first rule है of naming alkene and alkyne according to IUPAC, you know, first rule जो है that is select the longest continuous carbon chain। तो longest continuous carbon chain अगर यहाँ से select करें from left 1 2 3 4 and 5, it means there is a double bond at carbon number 1 and there is a triple bond at carbon number 3। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 and 3 का रेशो। And if I start naming from here 1 2 3 4 and 5, so there is a double bond at 2 position, triple bond at 2 position and a double bond at 4 position। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबरिंग विल be started from that side where the double bond or triple bond they get the least possible number। इसको हम कहते हैं lowest locant rule। lowest locant rule, lowest locant rule means कि आपने डबल या ट्रिपल को कम से कम पोजीशन लेनी है। तो ये 2 और 4 को अगर प्लस करें तो 6 आता है, 3 और 1 को देखें तो 4 आता है। तो दिस वन इज करेक्ट, ये वाला इंस्टेड ऑफ दिस वन। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इसके 2 वे में हम लिखते हैं। एट पोजिशन नंबर 1 there is a double bond, so we say 1 pentene, 1 pentene। Pent means compound consisting of 5 carbon atom and ene stands for the presence of a double bond between these 2 carbon atoms। 1 pentene and 3 at position number 3 ine, YNE। ine means presence of a triple bond। तो पेंटाइन लिखने के बजाय, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इट इज़ पेंट 5 कार्बन है, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 pentene 3 ine, इट मीन्स देयर this hydrocarbon consists of 5 carbon atoms। There is a double bond at position number 1 and triple bond at position number 3। तो लिखने में पहले डबल आता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। ये था सिंपल वे ऑफ नेमिंग एल्कीन एंड एल्काइन। सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है,
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ नेमिंग एल्कीन एंड एल्काइन. What is the rule for naming एल्कीन हो और एल्काइन? तो हमारे पास रूल क्या है? जो हमारे पास फर्स्ट रूल है फॉर नेमिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नेम करने का. द फर्स्ट रूल जो है दैट इज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. यानी हाइड्रोकार्बन जो है कंपाउंड, उसमें आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है. चेन भी लॉन्ग होनी चाहिए और उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी बीच में ज़रूर आने चाहिए. अगर आपने ऐसी चेन सिलेक्ट की है जो लॉन्ग तो है लेकिन उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शामिल नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन है दैट इज़ रॉन्ग. सो फर्स्ट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. और इसके बाद द सेकेंड रूल इज गिविंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लीस्ट पॉसिबल नंबर. इट मीन्स कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है. एल्कीन आपको दी गई है और आपको एल्काइन दिया गया है, ये दोनों मौजूद हैं. जहाँ पर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है इनकी मिनिमम पोजीशन, कम से कम नंबर है. दिस इज द सेकेंड रूल. व्हाट अबाउट थर्ड रूल? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन भी पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं. डबल और ट्रिपल बॉन्ड इस टाइम देखेंगे. इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी. सब्स्टिट्यूएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी रिमूव वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं बाय एन एल्काइल ग्रुप. CH3 होगा, CH4 है तो मीथेन टू मिथाइल बनाना होगा तो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है. तो क्या होगा, जैसे मीथेन है तो मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, इट विल बी मिथाइल एल्काइल. मीथेन से क्या आएगा, मिथाइल YL एल्काइल ग्रुप. तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. मिथाइल, इथाइल, इथेन से इथाइल की आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर वो एल्काइल ग्रुप के बन गया. प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन टू ब्यूटाइल, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट. के मेन चेन में से आपने हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और ग्रुप अटैच कर दिया. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट priority. If there are number of substituent, different substituent, तो किस सब्स्टिट्यूएंट को आप फर्स्ट पोजीशन देंगे या उसको प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर. इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज अ हेलोजन, सपोज इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 और एल्काइल ग्रुप CH3. तो ये याद करें, ऑल द हेलोजेंस और ये NO2 नेगेटिव वाले, देयर नेम एंड्स एट O. इसको जब हम लिखेंगे नेमिंग में तो फ्लोरीन के बजाय वी विल राइट फ्लोरो. जैसे यहाँ पर मीथेन से मिथाइल आया था एल्काइल में YL, यहाँ पर आएगा फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरो,
ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, NO2, नाइट्रो एंड मिथाइल, ये मिथाइल रहेगा, एल्काइल है, मिल्काइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट ये मौजूद हैं तो ये इन्फीरियर हैं, ये इनकी प्योरिटी लेस है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसी हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजेंस भी हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो आपने प्योरिटी इनको देनी है, इनको नहीं। सो इम्पोर्टेंस विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नॉट दीज। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। Example is a compound containing 5 carbons, 1 2 3 4 5. Okay, now there is a double bond here, and then there are 2 alkyl groups, and the name of this alkyl group is methyl. Now according to the rule, जो rule है, that is select longest continuous chain of double or triple bond. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट को डबल में लास्ट में लेना 1 2 3 4 5, this chain containing 5 carbon atoms. ओके, और इसको कंप्लीट भी कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2। Numbering will be started giving the double bond least possible position और lowest locant rule, कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4 5. It means there is a double bond at position number 1 and there are 2 alkyl group or substituent at position number 4. तो पहले आपको बता चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पोजीशन ऑफ alkyl groups and mention alkyl group, then we will solve this part. तो हमारे पास क्या आएगा? Name of this alkene is 4,4 dimethyl 4,4. It means di stands for 2 methyl. There are 2 methyl, one methyl at position number 4 and other methyl also at position number 4. तो ये हो जाएगा 4,4 dimethyl and 1 pentene. 4,4 dimethyl 1 pentene. अब ये जो वे है ऑफ डिस्क्राइबिंग और नेमिंग द एल्कीन इज रॉन्ग. जो एक्चुअल है दैट इज 4,4 डाइमिथाइल. बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही कंसिडर करते हैं, जबकि एक्चुअली ये सही नहीं है. लेट्स 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1 ene. Pent means 5 carbons, 1 means at position number 1. Ene, there is a double bond. 4,4 dimethyl pent 1 ene. इसी नेम की एक और दफ़ा रिहर्सल कर लेते हैं विद एन अदर एग्जाम्पल. उसमें मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कार्बन कार्बन सिंपल हम लाइन से काम चलाएंगे.
I am giving you the example of 7 carbons. अगर हम 7 carbons ले लें 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7 carbon 3 4 carbon 5 carbon 6 carbon and 7 carbon. Here is a double bond between these 2 carbons, and say here I am removing one hydrogen by halogen. It is Br. Suppose it is Br. So first rule is select the longest continuous carbon chain. The longest continuous carbon chain is this one, containing 7 carbons. It is heptene. Heptene, say the name of this alkene is heptene. Ene. Heptene. Hep means that there are 7 carbons and ene means there is a double bond somewhere else. कहीं पे double bond है. So first is select the longest continuous carbon chain. Second rule जो हमारा था वो था giving the double bond least possible number. अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 carbon 2 3 4 5 and 6, it means the double bond will be at position number 6 पे आएगा, जो कि गलत है. अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 and 7, here the double bond will be at position number 1. तो सेकेंड रूल क्या था, गिविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, जिसको मैंने आपको बताया था इट इज सेड टू बी एज द लोएस्ट लोकेंट रूल. नाउ सब्स्टिट्यूएंट इज हैलोजन एट पोजीशन नंबर, एट कार्बन नंबर या पोजीशन नंबर 4. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी नेम ऑफ दिस एल्कीन विल बी 4, ब्रोमीन से 4, ब्रोमो, शाबाश, 4 ब्रोमो 7 कार्बन्स, 4 ब्रोमो हेप्ट, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन्स, हेप्ट 1 इन, यानी हेप्टीन लिखने के बजाय 1 हेप्टीन के बजाय फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, then position of double bond and it ends at ene. जैसे हमने इसको सॉल्व किया 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन, तो इट इज हेप्ट 1 इन. तो इन मीन्स दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड, और जो कंपाउंड आपको दिया गया है आपने पहचान लिया है कि इट इज एन एल्कीन. ठीक है जी. अब हमारे पास आती है एक और एग्जांपल कर लें कि विच वन इज करेक्ट. ये आपको मैंने दी है एक एग्जांपल. ओके, से टेक एन अदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड वन. इसमें हम ले लेते हैं 8 कार्बन्स. 8 कार्बन्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8. हाइड्रोजन नहीं लिख रही. Now there is a triple bond here. पहले में हमने एग्जांपल जो दिया सिर्फ डबल बॉन्ड एल्कीन की, तो अब हम ऐसे एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं. एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड. ओके, तो अब आप देखें कि इसका हम नाम कैसे लिखें कि डबल भी ट्रिपल भी है और डबल भी है.
तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर लेफ्ट टू राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8. It means there is a triple bond at carbon number 2 and there is a double bond at carbon number 5. तो ये 2 और 5 का कम्बिनेशन बन रहा है. और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो देयर इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है, एट कार्बन नंबर 3 3 4 5 6 एंड देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 6. तो 2 + 5 7. ये वैसे भी देख लें तो आपको ये कम नंबर लग रहा है और ये ज़्यादा. तो हमारा जो सेकंड था वो क्या था, गिविंग द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड और बोथ द लीस्ट पॉसिबल नंबर, द लीस्ट पोजीशन विच इज़ सेड टू बी एज, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ सेड टू बी एज लोएस्ट लोकेंट रूल. बाज़ बुक्स में ये नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर, वो भी सही है. लोएस्ट लोकेंट रूल, ये भी ठीक है. तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली इसको आप कैंसिल करेंगे, ये ठीक नहीं है. दिस वन इज़ करेक्ट वे कि हमने लीस्ट पॉसिबल पोजीशन दिया है. Now there is a triple bond and a double bond. अब लिखते हुए आपने क्या करना है, अगरचे कि आप यहाँ पे देखें the triple bond is at position number 2 and double is at position number 5. तो असूलन हमें ये पहले लिखना चाहिए नेमिंग में और इसको बाद में के 5 आता है. लेकिन लिखते हुए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डबल एंड देन मेंशन ट्रिपल बॉन्ड. पहले डबल को मेंशन करेंगे और फिर ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, द नेम ऑफ दिस एल्कीन, द वे टू गिव इट्स नेम इज ऑक्ट. अब इसके कई तरीके हैं लिखने के, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा. इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, 5 ऑक्टेन, इट मीन्स यूँ करके ऐसे समझिए, 5 के पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है, 5 ऑक्टेन 2 आइन. ऐसे भी स्टूडेंट लिख लेते हैं, बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है 5 ऑक्टेन 2 आइन. इट मीन्स देयर इज एन एल्कीन consisting of 8 carbons. There is a double bond at position number 5 and there is a triple bond at position number 2. So 5 octane 2 ine. This is not correct. जो सही है इसका नेमिंग, that is in this case, first of all tell how many carbons are there. Oct 5 in 5 in 2 ine. ये ठीक है. Oct 5 in 2 ine. So when the double and triple bond both are present, first of all you will mention double bond and then you will mention the triple bond. And what will happen if tie comes? अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाई आती है, टाई मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? अगर डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, दोनों को ही हम वन पोजीशन दे सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ये हमारे पास आता है when tie comes between
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इस केस में आप क्या करेंगे? इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये स्पेशल केस है हमारे पास। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है एट कार्बन नंबर 1, और इधर मैं लिख लेती हूँ ट्रिपल बॉन्ड अगेन एट कार्बन नंबर 1। इस केस में आप क्या करेंगे? व्हेन बोथ आर एट द सेम कार्बन पोजीशन नंबर, पोजीशन की सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इन दैट केस व्हाट इज द रूल? व्हेन टाई कम्स, जब टाई आपके पास आया तो आपने क्या करना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड जो होगा इसको, ये ग्रेटर है देन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसको मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देनी है, इसी को अपने इम्पोर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। बट इन सच केस व्हेन देयर इज अ टाई, स्पेशल केस में, तो द नेमिंग विल बी फ्रॉम हियर 1 2 3 4 and 5. So total carbons are 5, so it will be pent 1 at position number 1 there is a double bond, pent 1 in and 4 ion। क्या हो गया आपके पास? दोबारा लिख लें, pent 1 in 4 ion। In that case when there is a tie between double and triple bond। ठीक है जी। एक और एग्जांपल कर लें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया देयर इज अ डबल बॉन्ड हेयर एंड ऑल्सो अ डबल बॉन्ड हेयर, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। द नेमिंग विल बी फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5। दिस इज 1 3 1 3, इसको लिखा जाता है पेंटा डाई इन। ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट, पेंटा मीन्स 5 कार्बन एटम, डाई मीन्स 2 एंड इन मीन देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, one at position number 1 and other at position number 3। जबकि इसका जो एक्चुअल और सही रूल है ऑफ नेमिंग दिस एल्कीन इज पेंट 1 3 diene। It is a compound consisting upon 5 carbon atoms and there are 2 double bond, one at position number 1 and other at position number 3। So pent 1 3 diene। तो ये भी आपने देख लिया कि टाई के केस में आप क्या कहेंगे कि डबल जो है इसको अपने प्रेफरेंस देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें भी आपने देख लिया कि सबसे पहले आपने हाइड्रोकार्बन का नाम लेना है टोटल, फिर उनकी पोजीशंस, एंड देन आपने मेंशन करना है कि डाई इन है, ट्राई इन है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस केस। ओके, एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पर लास्ट में हमने जो लिए हैं सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स वर मिथाइल एंड ब्रोमो, इजी सब्स्टिट्यूएंट है। तो थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं
कि कोई बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं. What will happen in that case? Another example of 6 carbons, 1 2 3 4 5 and 6 हैं, and at this carbon there is an alkyl group है CH2 and CH3, and there is a double bond. अब numbering will be, first of all we will select the longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain is 1 2 3 4 5 and 6. It means that there is a double bond at carbon number 2 and there is alkyl at carbon number 3. तो 2 से ये हेक्सीन बन जाएगा बिकॉज 6 कार्बन्स हैं. हेक्सा से हेक्सीन, E stands for the presence of double bond, and at position number 3 there is an alkyl group. ये जो है हमारे पास ये एक alkyl group है, and this alkyl group is from propane to propyl. 3 कार्बन्स हैं इसमें, 1 2 3, और 3 वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन. प्रोपेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, C3H8 है, CnH2n+2 के अकॉर्डिंगली. पिछले लेक्चर्स आप देख लें. तो 3C3H8, H8 में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करें तो प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा. 3 + 4 5 और 6 7 8. तो ये तो हमारा बन गया प्रोपेन. ये है हमारे पास एक्चुअली CH2. अब हमारे पास आ गया प्रोपाइल. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ this compound? The name of this compound is at position number 3 N-propyl, normal propyl. पिछले लेक्चर्स में आप आइसोप्रोपाइल के बारे में देख चुके हैं. इट इज़ नॉट ब्रांच बॉन्ड, नॉर्मल प्रोपाइल. 3N-propyl, 2-hexene. अगर ये लिख लें आप करना तो इसको भी सही चाहिए, ये भी वैसे सही है. बहरहाल इसको हम दोबारा लिख लेते हैं. 3N-propyl hex 2-ene. Total carbons are 6 and at position number 2 there is a double bond. This is the case when there is a substituent rather than methyl, ethyl or bromo or fluoro, etc. Now another example, 1 2 3 4. इसको आप क्या नाम देंगे? 4 कार्बन वाले को 4 कार्बन ब्यूटीन. तो ब्यूटीन से select the longest continuous carbon chain, 1 2 3 and 4. So one double bond at position number 1 and other double bond at position number, एक मिनट, यहाँ पर CH2 2 और 2 4. ठीक है, 1 2, इसको मैं दोबारा 1 2 3 and 4. तो ये हमारे पास आ रहा है 1 2 3 and 4. So at position number 1 and 3 there is a double bond. It is actually butene. But means 4 carbons, ene means double bond.
So the name of this alkene will be 1,3-butadiene. 1,3-butadiene. Buta stands for 4 carbons, di stands for 2, and E stands for the presence of double bond. और इसी में अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स ले लिए जाएं, and other example, what will happen in that case? It is the case of 6 carbons, 1 2 3 4 5 and 6. There are 2 methyl groups here and there is a double bond here and again a methyl or alkyl group. इस केस में आप क्या करेंगे? How will you name this compound? जो हमारे पास रूल है that is select the longest continuous carbon chain. कार्बन चेन का अगर यहाँ से सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, और अगर यहाँ से भी करें 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 कार्बन एटम्स, एंड देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल हैं. तो सेकेंड है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को भी और डबल बॉन्ड को बेसिकली आपने लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है. तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4, डबल बॉन्ड विल बी एट पोजीशन नंबर 4. ये 4 और 5 और 6 आपने 5 नहीं कहना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नियर टू दैट. तो ये 4 पे आ रहा है और यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6. डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2. इट इज़ एक्चुअली बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3. तो 2 से तो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं पोजीशन नंबर 2. तो ये सिलेक्ट नहीं करते. हमारे पास अब आ रहा है डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2 एंड ऑल्सो देयर इज एन एल्काइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 2. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एल्कीन? एट पोजीशन नंबर 2 देयर इज एल्काइल and again there is a methyl at position number 5. 2 methyl हैं तो 5 5. It means at 5 position there is a methyl, again at 5 position there is a methyl. तो टोटल हमारे पास कितने मिथाइल हो गए? 2 5 5. ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, ट्राई stands for 3. 2 5 5 trimethyl, trimethyl hex 2-ene. बुक्स में, ओल्ड बुक्स में भी और आजकल की बास्कीज में भी ये लिखा हुआ है 2-hexane, उसको भी सही मान लें. 2 5 5 trimethyl hex 2-ene. तो इट मीन्स कि हमने सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनकी पोजीशन मेंशन की और फिर यहाँ पर बता दिया डाई ट्राई करके कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. इफ़ 2 डाई एंड इफ 3 ट्राई. 1 वाले को मोनोल करके नहीं लिखते, सिर्फ मिथाइल इथाइल करके जाहिर करते हैं. Now if the substituent is not methyl, neither methyl nor it is ethyl, और ना ही हमारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो है. इफ़ अ सब्स्टिट्यूएंट इज़ अगेन एन एल्कीन, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन के तौर पर आए तो उस वे में हम क्या करेंगे? ये कम ही दिया हुआ है लेकिन आप लोग समझने से. टोटल कार्बन्स आई एम टेकिंग 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्बन्स आ गई.
और यहाँ पर हमारे पास here there is a double bond, okay, again a double bond here, 1 2 3 and 4, and there is a substituent and the name of this substituent is ethene. CH2 double bond CH2 from ethene to ethene, ये substituent के तौर पर आ रहा है. According to the rule, first of all select the longest continuous carbon chain containing double bond. तो longest continuous chain जो है आपके पास definitely ये वाली है, आप इसी को select करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वे में भी जाए तो 8 कार्बन आती हैं. ऑक्टेन यहाँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम, तो इट इज़ एन ऑक्टेन. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 1. ओके, यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. It means that there is a double bond at carbon number 1 and there is a double bond at carbon number 6. 1 और 6 पर हमारे पास डबल बॉन्ड है and there is a substituent ethene at carbon number 4. तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ रहा है एक्चुअली ईथीन. लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं देयर नेम एंड्स एट YL, फ्रॉम मीथेन टू मिथाइल, ईथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल. अब ये सब्स्टिट्यूएंट भी वैसा ही है, ओनली द डिफरेंस इज दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई द नेम इज चेंज फ्रॉम ईथेन टू ईथीन. तो ईथीन से हम ले लेंगे ईथीनाइल. तो लिखते हुए हम क्या करेंगे, इस ई को ओमिट कर देंगे यहाँ से, इसको साथ ही लिख लें ऐसे, इथेनाइल. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 4-ethynyl. It means there is a substituent at carbon number 4, position number 4. 4-ethynyl, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने दे दिया, सब्स्टिट्यूएंट, देन द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन जो पेरेंट नेम है, पेरेंट कार्बन. Parent carbon is oct, 4-ethynyl oct, and then mention the position of double bond. फिर आपने position mention की, position of double bond. Position number double का है, one is at position number 1 and other at position number 6. 4-ethynyl oct 1,6 dash diene. Di stands for 2, di means 2 and ene stands for double bond, that there are 2 double bond, one double bond at position number 1, other double bond at position number 6. तो इसको अगर हम दोबारा से लिखें तो हमारे पास नेम आएगा सच 4, इसको छोड़ दें, 4-ethynyl, 4-ethynyl oct 1,6 oct and बिफोर ऑक्ट और आफ्टर ऑक्ट इसकी नेम से डैश लगती है, 1,6 अगेन डैश डाई
इन। कहाँ पे हमने कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमने हाइफन या आप इसको डैश कह लें, ये लगानी है। इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। 4 इथेनाइल ऑक्ट 1,6-डाइईन। आमतौर पर जो हम पोजीशन मेंशन करते हैं जैसे 2, 4, 6, तो इनमें हम कॉमा लेते हैं। और डाइईन, ट्राइईन या हाइड्रोकार्बन्स का नाम हो उससे पहले बाद में डैश आती है। तो द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 4 इथेनाइल ऑक्ट 1,6-डाइईन। It means in case of naming alkene, the name of alkene ends at ene and the name of alkyne ends at yne. Ene means that there is a double bond and ine means that there is a triple bond between carbon and carbon atom. तो आज आपने पढ़ लिया alkene and alkyne. Hopefully इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे या ईथर पढ़ लेंगे या अल्कोहल या कुछ और। थैंक यू।